Hello my dear kids and welcome back. So as you all know that in the last class we have done a very important chapter, that is cell the unit of life. तो आज हम इसी chapter के previous year questions solve करने वाले हैं from the year 2021 up to the year 2010. So if you have not watched the videos of this chapter या फिर अगर आपने कोई भी class miss की है, so firstly I would recommend कि आप पहले जाकर सारे recorded lectures देख लीजिए and then come to this session because this session is very important. इसके अंदर हम सारे questions solve करने वाले हैं जो भी previous years में पूछे गए हैं latest 2021 से लेकर 2010 तक. So that's why I don't want कि कोई भी बच्चा class के अंदर clueless बैठे. If you want that आप सारे questions solve कर पाओ तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप पूरा रिवीजन करके आए इस चैप्टर का एंड देन ओनली अटेंड दिस पर्टिकुलर सेशन. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद दिस सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इसके PYQ सॉल्व करेंगे. आप इसका वेटेज मान के चलो, हर साल इससे 2 से 3 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही बेसिक है. बहुत छोटी क्लासेस से आप ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं सेल के बारे में. सो दैट इज वाई चिल्ड्रन डोंट फाइंड इट क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, quickly I want all your responses. Let me see who all are present in the class and quickly send me a thumbs up बच्चों. जल्दी से बच्चों send me a thumbs up so that I can get to know how many of you are present here. Okay. Hello everyone, I'm doing quite great and I'm expecting the same for you. I'm hoping the same for you कि आप सब भी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं. आप सब you all are keeping quite well and you all are studying well, discipline maintain कर रहे हैं and yes. All right. Quickly, let me see how many of you are present in the class. Quickly a thumbs up. All right. So that's great. चलिए, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. और क्वेश्चन है 2021 का हमारे सामने, ये रहा. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, यू हैव टू मैच इट. 2021 का ही क्वेश्चन है. चलिए, सो 10 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन. यू ऑल नो आपके पास 10 सेकेंड रहते हैं. 10 सेकेंड में आप सभी को आंसर करना है, सभी को पार्टिसिपेट करना है यहाँ पर. ऑल राइट. So you have to match the column cristae, thylakoid, centromere, cisternae and यहाँ पर उसके सामने दिया हुआ है primary constriction in chromosome, disc shaped sacs in Golgi apparatus, in foldings in mitochondria and flattened membranous sacs in the stroma of plastids. Then you have to choose the correct answer from the options given below. You have to match this. All right. So let us see who is the one who is answering first. ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों. सो बहुत ही जल्दी क्विक लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्सेज यहाँ पर मिल रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सेज आर डेफिनेटली एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत ही बढ़िया बच्चों. चलिए, सो देखते हैं व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. एज वी कैन सी क्रिस्टे. व्हाट इज क्रिस्टे? आई होप यू ऑल रिमेंबर. क्रिस्टे वी हैव सीन दैट ये इनफोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की. सो ए को मैच करना है 3 के साथ. देखो एक ही ऑप्शन में है यहाँ पर, दैट मीन्स डायरेक्टली हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं बट स्टिल हम इसको पूरा मैच कर लेंगे. दैट इज थाइलेकॉइड्स. क्या होते हैं? दे आर द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स. सेंट्रोमियर क्या है? Primary constriction in chromosome. And what is cisternae? They are the disc shaped sacs in Golgi apparatus. So in this manner we have matched it all और हमारा आंसर आता है आंसर number 3. Now next question, and the question is, when the centromere is situated in the middle of 2 equal arms of chromosomes, then the chromosome is referred as metacentric, telocentric, submetacentric or acrocentric. Okay, and when the centromere is situated in the middle of 2 equal arms of the chromosomes, then what do we call it? I hope you all remember chromosomes के structures हमने पढ़े हुए हैं and let us see first of all what answers we are receiving here. All right, 10 seconds for each question बेटा. 10 सेकेंड आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए और यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस टाइम लिमिट में ही आंसर दे दो बिकॉज यू हैव टू मेक योर पेस ऑल्सो. आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करनी है. यू हैव टू अपीयर फॉर नीट एग्जाम, सो उस हिसाब से ही यू हैव टू बी दैट फास्ट, दैट क्विक ऑल्सो विथ योर रिस्पॉन्सेज. सो सेंट्रोमियर इट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो उस क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? यू ऑल रिमेंबर कि अगर इस तरह से सेंटर में सेंट्रोमियर होगा और इफ द 2 arms
they are equal to each other, then we call it as metacentric. अगर middle of two equal arms में present है उसे हम कहेंगे metacentric. अगर थोड़ा सा ऐसा slightly shifted है और एक आर्म थोड़ी छोटी, दूसरी आर्म if it is a little longer, then we do call it as submetacentric. Then अगर और थोड़ा सा shifted है एक कॉर्नर में and एक आर्म और छोटी हो जाती है, दूसरी आर्म is comparatively even longer, we call it as acrocentric. And then अगर एकदम extreme end पे shifted है हमारा centromere इस तरह से, so what we call it? We would call it as telocentric, right? So this is something to understand here. Now let's come to the next question in front of us, and the question is in front of us right here. Which of the following statements about inclusion bodies is incorrect? Incorrect statement आपको बताना है अब यहाँ पर, और ये question है 2020 का, 2020 का ही question है ये, and the options are they are bound by any membrane, or these are involved in ingestion of food particles, they lie free in the cytoplasm, these represent reserve material in cytoplasm. First में दिया है they are not bound by any membrane, not bound, okay, and they have asked you about the incorrect statement. चलिए, so incorrect statement यहाँ पर बताना है. Let us see what all you are answering. चलिए, so देखते हैं क्या response मिल रहा है इस question के लिए. You all know they are asking you about inclusion bodies. Inclusion bodies की बात चल रही है यहाँ पर. Okay, and you have to tell the incorrect statement regarding them. Incorrect statement. आप सभी को याद है inclusion bodies क्या होती है बेटा? Yes, सृष्टि, you were not there in the last class. No problem बेटा, जल्दी से आप उसकी recordings देख लीजिएगा. अभी अगर आप इस सेशन में आए हो, so please go through the questions that we are doing here. You can have a look at the questions. आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा क्योंकि आपने पहले की क्लासेस तो अटेंड की है. Yes, all right. चलिए, so let us see what all you are answering, and mostly the answers that I am receiving here are definitely right. Here they are talking to you about inclusion bodies. अब ये inclusion bodies क्या होती हैं? आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था कि सेल के अंदर कुछ ऐसी रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है. Just generally it is present in the cytoplasm, not bounded by any membrane or anything. So if we are talking about the incorrect statement about the inclusion bodies, so inclusion bodies के बारे में incorrect ये है that firstly देखो, they are not bound by any membrane. This is definitely true. We all know कि inclusion bodies के आसपास कोई membrane नहीं होता है. कोई भी चीज़ जैसे कि oil droplet या फिर starch granules वगैरह इसी बस cytoplasm में ऐसे ही पड़े रहते हैं without any membrane. तो उसे हम इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं. देन दीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स में कोई भी इनका रोल होता है क्या? नो, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स. सो दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है. देन दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म. yes, definitely, we just discussed कि cytoplasm में freely they are present, and these represent reserve material in cytoplasm. Definitely they do represent reserve food material in the cytoplasm. So that is why the correct answer here becomes B. और बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, तो अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं सभी बच्चे. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर. आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, एंड क्वेश्चन इज विच इज द इंपॉर्टेंट साइट of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells. और options आपके सामने दिए हुए हैं, and you can see here endoplasmic reticulum, peroxisomes, Golgi bodies और polysomes. और क्वेश्चन है 2020 का, 2020 का क्वेश्चन हमारे सामने. Which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cell? डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद होने चाहिए सारी सेल ऑर्गेनेल्स, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस, दे शुड बी वेरी वेरी nicely revised by you so that no confusion would arise. So endoplasmic reticulum, peroxisome, Golgi and polysomes. Let's see क्या आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों के. अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर द आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग हियर आर क्वाइट मिक्स्ड. मतलब दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पे. आई कैन से 60-40% में टू आंसर्स आई एम रिसीविंग हियर. सम आर सेइंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सम आर सेइंग गोल्गी apparatus. सो यू कैन सी हियर
डायरेक्टली वो पूछ रहे हैं आपसे ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन की साइट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की, ग्लाइको वर्ड दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो वो प्रोटीन या फिर लिपिड जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होगा उसी को हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देम हियर इन यूकैरियोटिक सेल्स, सो वेयर आर दे फॉर्म्ड? वी ऑल नो दैट दीज आर फॉर्म्ड इन गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज में फॉर्मेशन होता है इनका, दैट इज वाई वी हैव टू सिलेक्ट सी एज आर करेक्ट आंसर हियर। सो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, वेयर आर दे फॉर्म्ड? दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड इन गोल्गी बॉडीज। वेरी इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट थिंग। एंड जो बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे वो ये समझ लीजिए, ER जो है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स, डेफिनेटली वी नो कि RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन और जो SER रहता है वो लिपिड फॉर्मेशन कर रहा है। बट हियर दे आर talking to you about glycoproteins and glycolipids. That is why Golgi apparatus or Golgi bodies has to be the correct answer here. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ए सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट proposed by एरिस्टोटल, रडोल्फ वर्काउ, थियोडोर श्वान या फिर स्क्लेडिन। 2019 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो ऐसा है बिल्कुल डायरेक्ट और आपने काफ़ी ज़्यादा इसे पढ़ रखा है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं ये बात। सो आई डोंट थिंक कि इसका आंसर कोई भी यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होने वाली है इसके आंसर में। Omnis cellula acellula, what does that mean? All the cell arise from pre-existing cell। और ये बात किसने कही थी आकर? डेफिनेटली, बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इसके तो आंसर्स आए हैं यहाँ पर, एंड ऑल ऑफ यू वेरी गुड, सबने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। Omnis cellula acellula किसने कहा था? रडोल्फ वर्काउ ने। श्वान एंड स्क्लेडिन ने सेल थियरी प्रपोज की थी, उसे मॉडिफाई करने का काम किया था रडोल्फ वर्काउ ने, बाय गिविंग दिस Omnis cellula acellula, that means all the cells arise from pre-existing cells। Then अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, which of the following statements is not correct? फिर से नॉट को हाईलाइट कर लेते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैं तो यहाँ पर हर बार ये चीज़ को हाईलाइट करूंगी, नॉट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है। ओके, so here we can see 2019 का क्वेश्चन है, and the options in front of you are lysosomes are formed by the process of packaging in endoplasmic reticulum। Lysosomes have numerous hydrolytic enzymes। The hydrolytic enzymes of lysosomes are active under acidic pH, या फिर lysosomes are membrane bound structures। What you have to tell बच्चों? Not the correct statement about lysosomes। Okay, lysosomes are formed by the process of packaging in ER। numerous hydrolytic enzymes होती है, hydrolytic enzymes acidic pH पे activate होती है, या फिर lysosomes membrane bound structures हैं। You have to select the incorrect statement out of these and let us see what all you are answering। क्या answers यहाँ पर receive हो रहे हैं lysosome के लिए? Let me see। Alright, चलिए। Okay, so since they are asking you about lysosome बच्चों, lysosome कहाँ से फॉर्म होता है, you all have to remember this and the answers that I am receiving here। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे बच्चों। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी सेल ऑर्गेनेल से दे इमर्ज, दिस यू हैव टू रिमेंबर। मोस्टली आंसर दैट आई हैव रिसीव्ड इज डेफिनेटली राइट। कुछ एक बच्चे, थोड़े से फ्यू बच्चे दे गॉट कंफ्यूज, बट नो प्रॉब्लम। चलिए डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स की जब बात आती है। सो हाउ इज दैट फॉर्म्ड? लाइसोसोम्स वी ऑल हैव स्टडीड कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है गोल्गी अपैरेटस से, राइट। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया है? फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Lysosomes are formed by the process of packaging in the ER। No, not at all। They are actually formed from Golgi apparatus। Golgi body से form होते हैं। So ये हमारा first statement ही यहाँ पर गलत है। It is the wrong statement here। And apart from that, lysosome में बहुत सी hydrolytic enzymes होती हैं। Definitely yes। Hydrolytic enzymes activated होती है acidic pH में, yes। And lysosomes are membrane bound structures, definitely। So what is incorrect? A is incorrect because lysosomes are formed by your Golgi apparatus, that's why।
Then next question is which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? अब आपको mitochondria के बारे में incorrect statement बताना है and the question is from 2019 का ये question है and the statements are in front of you. Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. या फिर outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. Then enzymes of electron transport are embedded in the outer membrane. या फिर inner membrane is convoluted into foldings. And you have to tell the incorrect statement. बच्चों ध्यान से पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं. 2019 का ये क्वेश्चन है and you have all got 10 seconds to answer this question. And let us see who all are answering correctly. 2019 का क्वेश्चन. अब देखो हर साल आप देख रहे हैं कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं एंड चैप्टर इज क्वाइट इजी. तो जब ऐसे इजी चैप्टर्स से आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो दैट actually has to be your scoring point. मतलब chapter is not difficult at all. Just you have to remember the characteristics of organelles and their functions, so that's why your scoring chances are very high from this. मतलब आप 100% accuracy के साथ इन chapters में से score कर सकते हो. चलिए, so let us see what all you are answering here. All right, ठीक है. So mixed answers यहाँ पर आ रहे हैं इस question के लिए. As I can see here that children are giving mixed answer here for this particular question. अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है ना बच्चों. They are asking about mitochondria. Yes चिरंजीवी, I can see your answer. अभी हम जब आंसर डिस्कस करेंगे तो आप सभी को पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है. I can see each and every one's response here. मुझे सबके रिस्पॉन्स यहाँ पर मिलते हैं एंड डेफिनेटली आई चेक कि कौन सा बच्चा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है. सो डोंट वरी एट ऑल, व्हेन वी विल डिस्कस यू विल गेट टू नो दैट वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट करेक्ट. सो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया. फर्स्ट स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स. क्या ये बात सही है? डेफिनेटली येस. वी ऑल नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए होता है एंड that happens to be single circular DNA. Ribosomes are also present in it. Then outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and proteins. जो माइटोकॉन्ड्रिया का outer membrane होता है क्या उसके थ्रू मोनोमर्स पास हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के? Yes, that is possible. Then enzyme of electron transport are embedded in outer membrane. In the outer membrane of the mitochondria. This is given over here. ये स्टेटमेंट दिया है और आप सभी को याद होना चाहिए कि हमने ये बात पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्चुअली एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ क्या दिया है? आउटर मेम्ब्रेन दिया है ना बेटा. सो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स बिकम्स रॉन्ग हियर. बाकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे तो इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स. डेफिनेटली क्रिस्टे होते हैं, अभी हमने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो दैट्स वाई ये सारे स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं बट सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. जिन भी बच्चों ने सी आंसर दिया वेरी गुड, कीप इट अप. और बाकी बच्चे भी प्लीज समझ लीजिए कि जब क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के प्लीज रीड देम प्रॉपरली. सारे स्टेटमेंट्स प्रॉपरली आपको रीड करने हैं. देन अगेन 2019 का क्वेश्चन आपके सामने. द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ अ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड टू एज. Yes. Now again a direct question. M arm and N arm, S arm and L arm या फिर P arm and Q arm या फिर Q arm and P arm. आपसे पूछा है shorter and longer arms बच्चों. So you have to tell the correct option here. Okay. And let us see who all are giving right answers. बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी आंसर करते हैं very quickly. Answering, some kids are answering very quickly, but still I always recommend कि जब आप आंसर कर रहे हैं बच्चों so you have to make sure that you are reading up to option D. Option D तक पढ़े बिना आंसर किसी को भी नहीं करना चाहिए यहाँ पर. Alright, चलिए. So here very good. The answer that I have received here for this question is definitely absolutely correct. Mostly बच्चों ने यहाँ पर सही रिस्पॉन्स ही दिया है.
बहुत ही कम ऐसे बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हो गए दो ऑप्शंस के बीच में। ओके चलिए, सो यहाँ पर आपसे शॉर्टर एंड लॉन्गर पूछा है ना रिस्पेक्टिवली, सो यू हैव टू आंसर इट इन दैट वे ओनली। शॉर्टर आर्म को हमने क्या नाम दिया था? शॉर्टर आर्म इज कॉल्ड एज P arm and the longer one is called as Q arm, जबकि यहाँ पर इस ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, शॉर्टर को Q और लॉन्गर को P का है, तो इन दोनों ऑप्शंस में कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। सो रिमेंबर, जो शॉर्ट आर्म रहती है, शॉर्टर वन इज कॉल्ड एज P arm and the longer one is called as Q arm. That is why we have to select C answer here. C answer is definitely right here. Then next question from the year 2019 again. Which of the following pairs of organelle does not contain DNA? अब आपको बताना है does not contain DNA. So the options in front of us are nuclear envelope and mitochondria, mitochondria and lysosomes, chloroplasts and vacuoles, or lysosomes and vacuoles. And what you have to tell, without DNA, which of the organelle does not have DNA? Okay, and you all know कि DNA किसके पास होता है? DNA is present in, yes, let's see, definitely, very good. So ये बात तो सभी को याद होनी चाहिए that DNA we had studied कि DNA होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इट हैज गॉट इट्स ओन DNA. सो जितने भी ऑप्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, क्लोरोप्लास्ट दिया है, उसे हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे उनके पास, तो क्योंकि उनका खुद का डीएनए होता है। दे हैव आस्क्ड यू नॉट कंटेन इट्स ओन डीएनए, सो दैट इज डेफिनेटली लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, दे डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए एंड दैट्स व्हाई डी वी हैव टू सिलेक्ट हियर एज आवर करेक्ट आंसर। सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। Again, this is a question from the year 2019 and दो columns आपके सामने दिए हैं, you have to match them properly बच्चों, जल्दी से। Let's see, Golgi apparatus, lysosome, vacuoles and ribosomes they have given you, and here you can see synthesis of protein, trap waste and excretory products, formation of glycoproteins and glycolipids, digesting biomolecules. These are the options here, or these are the columns and these are the options in front of you. जल्दी से देख लो यहाँ पर कौन सा वाला मैच हो रहा है। All right, चलिए, so let's have a look what all you are answering. अब cell the unit of life जो चैप्टर है, that is quite easy, you must have realized this, बट इसमें भी आपको 100% एक्यूरेसी के साथ अगर अटेम्प्ट करना है इन योर नीट एग्जाम, सो फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी को अगेन एंड अगेन गो थ्रू करो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा अलग से पूछा गया हो। सो दैट्स वाई यू हैव टू मेक श्योर कि इस चैप्टर से आप पूरी एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ले। ऑल राइट, सो गोल्गी अपैरेटस की यहाँ पर बात चल रही है। गोल्गी अपैरेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। सो ए का 3 है यहाँ पर, और ए का 3 यहाँ पर दो ऑप्शंस में दिया है, 50-50% मिल गया आपको। चलिए, ए एंड सी में से कुछ आंसर होना चाहिए। देन लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, दिस इज व्हाट लाइसोसोम्स डू, राइट? सो बी का 4 है and that is given in A option. Then vacuoles they have actually, we can say, trap waste and excretory products, so C का 2 हो गया, and ribosomes synthesis of protein, D का 1. So in this manner we had to match it, और हमारा आंसर A है। जो भी बच्चों ने यहाँ पर A आंसर किया है, absolutely correct, very good. Then आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। Next question in front of your screen right here, 2018 का क्वेश्चन है ये, एंड द क्वेश्चन इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है देखिए क्वेश्चन, फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, या फिर एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन अगेन आपसे पूछा गया है यहाँ पर, एंड ऑप्शंस आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2018 का क्वेश्चन बच्चों, चलिए। सो ऑल राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, डेफिनेटली राइट।
बिल्कुल सही रिस्पॉन्स इसके लिए आ रहा है। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन तो हम बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। वी ऑल नो दैट गोल्गी अपैरेटस, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इट? द मेन फंक्शन ऑफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग, इज जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, दैट मीन्स डिस्पैच करता है ये मटेरियल को फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैन्युफैक्चर होता है वहां से उस मटेरियल को मॉडिफाई करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसको डिस्पैच करना अलग अलग लोकेशंस पे, ये काम होता है अपने गोल्गी अपैरेटस का। ऑलराइट, एंड यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, does that is that what Golgi complex participate in? No. Respiration in bacteria, बैक्टीरिया के अंदर respiration नॉट एट ऑल, बैक्टीरिया के अंदर तो सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं होती हैं। देन एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, नहीं, एब्रप्ट ऑप्शंस दिए ये सारे। देन गोल्गी अपैरेटस, कैन वी से दैट इट participates in function in formation of secretory vesicles? Yes, definitely, because you all must remember कि गोल्गी apparatus को हमने इस तरह से पढ़ा था that there is presence of stacks like this. Okay, and these stacks they actually bud off secretory vesicles. इनमें से क्या bud off होते हैं? They actually bud off secretory vesicles like this. इस तरह से secretory vesicles they are actually formed, और इसी के अंदर सारा जो कुछ भी मटेरियल उन्हें ट्रांसपोर्ट करना होता है वो इन वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। So definitely B has to be the correct answer. B is the right answer for this question. Then coming to next question in front of us, and the question is, which of the following events does not occur in the rough endoplasmic reticulum? You have to tell, doesn't occur in RER. 2018 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस आपके सामने है: प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, या फिर फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। दीज आर द ऑप्शंस एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड यू, दे हैव आस्क्ड यू फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER। RER के बारे में आपसे पूछा गया है एंड ऑप्शंस आपके सामने है, एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर हियर। क्या आंसर यहाँ पर मिल रहा है for this particular question that is in front of your screen? They have asked you about doesn't occur in rough endoplasmic reticulum. All right, चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर कितने बच्चे यहाँ पर दे रहे हैं। Who all are answering? Okay, so mostly the answer that I am receiving, they are actually mixed answers ज़्यादा आ रहे हैं इस question के लिए। All right, चलिए, so as you all know that they have asked you which of the following doesn't occur, and before we discuss this, yes, Nandini, where have you been beta? कहाँ थे बच्चे? You were not there in the last class में भी absent थे, and also अभी you have joined quite late. चलिए, we are solving PYQs, आपको समझ में आ रही है बातें जो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं? If not, then I again recommend कि आप सारे बच्चे जब भी आ रहे हैं इन सेशंस में, you have to come prepared, you have to revise the whole portion and then come here, okay? All right, चलिए कोई बात नहीं। So अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें से क्या नहीं करता है, and the options in front of us are protein folding, protein glycosylation, cleavage of single peptide, या फिर phospholipid synthesis. Okay, and as I can see here, the answer that I have received here, they all are quite mixed answer. मतलब बहुत ही mixed answers यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, and also we can see here that A, B, C, D सारे ही answers यहाँ पर actually इसके लिए आ गए। So not occur पूछा गया है बेटा आपसे, so you have to understand कि यहाँ पर option D में they have given you phospholipid synthesis. Phospholipid synthesis is something which is, we would say, it is not done by a rough endoplasmic reticulum. Okay, while if we talk about the rest of the things, so we all know that lipid synthesis is something that is done by smooth endoplasmic reticulum. That is why यहाँ पर D we have to select. Then next question हमारे सामने है select the incorrect match. अब फिर से आपको यहाँ पर incorrect match बताना है, and 2018 का ही question है ये, and the options are Lamb-Brush chromosome, diplotin bivalence, allosomes, sex chromosomes, submetacentric chromosome,
एल शेप्ड क्रोमोसोम या फिर पॉलीटीन क्रोमोसोम, oocytes of amphibians, and then you have to select the incorrectly matched pair here. All right, chaliye, so let us see if we have already received the answer for this. All right, chaliye, so I can see many kids are answering here, and yes, let me tell you one more thing बच्चों, कि जो भी हम जब PYQ सेशन करते हैं यहाँ पर, सो वी हैव ऑलरेडी डन द कंसेप्ट क्वाइट इन डेप्थ. हम ऑलरेडी वो कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में, और यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करें, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग देम. सो दैट्स व्हाई मेक श्योर दैट यू कम प्रिपेयर्ड विद द कंसेप्ट वाला पार्ट, बिकॉज कंसेप्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम नहीं एम्फेसाइज करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. एंड कंसेप्ट वाइज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्वाइट डिटेल. सो इफ़ यू हैव मिस दैट, सो फर्स्टली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले कंसेप्ट अपने क्लियर कर लें. सो हियर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, एंड फर्स्ट ऑप्शन में दिया है लैम्ब्रश क्रोमोसोम डिप्लोटीन बाइवेलेंट. येस, दैट इज ट्रू. देन एलोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स उन्हें हम कहते हैं, येस. देन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड होता है शेप में, डेफिनेटली इट अपीयर्स एल शेप्ड. हमने अभी कुछ देर पहले ये सारे क्रोमोसोम्स की बात की थी, और एनाफेज के दौरान हमने उनके अल्फाबेटिकल शेप्स की भी बात की थी इन द क्लास. देन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, oocytes ऑफ एम्फीबियंस. सो दिस एक्चुअली इज अ रॉन्ग पेयर, क्योंकि ये जो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होता है ये बहुत ही पॉपुलरली दे आर फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स की सलाइवरी ग्लैंड्स में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स होते हैं. ये एक्चुअल में बहुत बड़े, दे आर एक्चुअली giant chromosomes which are the characteristic of salivary, which are characteristically found in salivary glands of certain insects. So that is why यहाँ पर D जो है हमारे सामने, that is the incorrectly matched pair, and that's why हमने यहाँ पर D select किया हुआ है. So बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर correct answer भी दिया था, but सिमिलरली इनकरेक्ट आंसर्स भी रिसीव हुए थे. तो कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया पॉलीटीन क्रोमोसोम्स कहाँ पर होते हैं. देन which of the following cell organelles is responsible for extracting energy from carbohydrates to form ATP? एंड क्वेश्चन है 2017 का, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम. अब ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए तुरंत वी शुड गेट द आंसर्स, एंड लेट अस सी. बच्चों आपसे पूछा गया है कि एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली. पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस कौन होता है सेल का? पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही होता है टू ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू योर एनर्जी. सो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है? एटीपी कहाँ फॉर्म होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर. इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यस, डेफिनेटली. ओके, वेरी गुड. चलिए, सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज राइट हियर. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. अब आपको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. पिलाई एंड फिम्ब्रे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल. साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजुलेटेड सेल्स. या फिर माइकोप्लाज्मा is a wall-less microorganism, and you have to tell wrong statement from the year 2016. The question is okay, so yes, 10 seconds for the same question which is in front of your screen, and what you have to tell beta यहाँ पर आपको बताना है incorrect, wrong statement. And as I can see, all right. Okay, so the answers that I am receiving here, they are definitely, mostly the answers that I am receiving here, they are right only, and this is actually making me quite happy because आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छे से याद है. यहाँ पर मोस्टली जो आंसर रिसीव हुआ है दैट हैपन्स टू बी आंसर बी. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट कहा गया है. क्यों? क्योंकि पिलाई एंड फिम्ब्रे, पिलाई और फिम्ब्रे दे आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी कहा है यहाँ पर. पिलाई एंड फिम्ब्रे दे आर नॉट मेंट फॉर मोटिलिटी. यू ऑल मस्ट रिमेंबर कि बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह से स्मॉल
हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट सीलिया. ओके, दे आर नॉट सीलिया, देन व्हाट आर दे आर एक्चुअली फिम्ब्रे. ये फिम्ब्रे होते हैं. क्या काम होता है फिम्ब्रे का? ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं, ये हमने पढ़ा था. देन पिलाई क्या करते हैं? पिलाई इस तरह से थोड़े ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं. मतलब अगर दो बैक्टीरिया के पास इस तरह से पिलाई होंगे, सो ये पिलाई के थ्रू अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं. सो पिलाई एंड फिम्ब्रे का फंक्शन मोटिलिटी में नहीं है, दे आर नॉट हेल्पिंग इन लोकोमोशन. सो दैट्स व्हाई वी वुड से हियर बी जो है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन. यस, साइनोबैक्टीरिया it lacks flagellated cells definitely, and mycoplasma is wall-less definitely. This is all these are facts, but B option is incorrect. Then आते हैं next question पे. Mitochondria and chloroplast are semi-autonomous, formed by division of pre-existing organelles, and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट. अब आपको बताना है कि ये दो स्टेटमेंट्स जो आपके सामने लिखे हैं, विच आउट ऑफ दीज आर करेक्ट एंड द ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू. ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों ही एक बी ट्रू है बट ए फॉल्स है. इस तरह से यू हैव टू टेल द आंसर. एंड दो स्टेटमेंट्स आपके सामने, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, या फिर दोनों ही फॉर्म होते हैं बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स बट दे कंटेन डीएनए बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. दैट्स द क्वेश्चन एंड 2016 का क्वेश्चन है. ओके, सो यू हैव टू गिव द राइट आंसर फॉर हियर. ऑलराइट, सो यस, लेट्स हैव अ लुक हु ऑल आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स. आंसर्स काफ़ी सारे बच्चों के आ रहे हैं. बीच बीच में कुछ बच्चे जो गायब हो रहे हैं, प्लीज कम बैक इन द क्लास. बी हियर, बी वेरी वेरी अटेंटिव बच्चों. हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आपका चाहिए यहाँ पर. यस, ऋषि, ऋषभ, यू हैव नॉट बीन आंसरिंग सिंस पास्ट 2-3 क्वेश्चंस. व्हाई सो? सी, कंफ्यूजन है बच्चों, तब भी आई ऑलवेज टेल यू कि इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन ऑल्सो यू हैव टू गिव द आंसर. भले ही आपको कंफ्यूजन हो, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, बट मेक श्योर दैट यू सेंड योर आंसर हियर और सेंड योर रिस्पॉन्स एटलीस्ट, सो दैट आई कैन गेट टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर कितने बच्चे एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में, हु ऑल आर वेरी अटेंटिव इन द क्लास. दिस इज व्हाट आई वांट टू नो. ओके, सो चलिए, यहाँ पर आपको बताना है, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड यू हैव टू टेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्टली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स हैं दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. एवरीवन कैन अग्री विद देम. दे ऑल आर सेमी ऑटोनॉमस क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है. दे कैन सेल्फ रेप्लिकेट देमसेल्व्स. सो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल्स एंड दे कंटेन डीएनए, इतनी बात तो सही है, बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. दिस इज रॉन्ग क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी होती है. दे ऑल्सो हैव देयर ओन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स भी तो होते हैं उनके पास. सो दैट इज वाई ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा. ए जो ऑप्शन है हमारा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन बी स्टेटमेंट आधा राइट है आधा रॉन्ग है. सो दैट्स वाई वी वुड से बी इज फॉल्स हियर. सो दैट इज वाई A happens to be our correct answer here. और जितने भी बच्चों ने यहाँ पर A आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड. चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ. माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमैटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल्स, सीलिया, फ्लैजिला, पेरोक्सिसोम, spindle fiber, centrioles and cilia. What you have to tell? Microtubules. बेटा यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पूछा है आपसे. 2016 का क्वेश्चन है. यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम हियर. तो लेट अस सी हु ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, एंड ऑलरेडी रिसीविंग द आंसर्स. वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया. बिल्कुल तेजी से आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं हमारे सामने. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पूछा गया है. सो वी ऑल नो. फर्स्ट ऑप्शन में आप देखो क्या दिया है, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड देन क्रोमैटिन. क्रोमैटिन में माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे क्या? नो. देन सेंट्रोसोम,
centrosome, nucleosome and centrioles. So this is also not true. Then cilia, flagella and peroxisome. Peroxisome में microtubules, no. Then D option is spindle fibers, centrioles and cilia. So definitely yes, spindle fibers, centrioles और cilia इन तीनों के ही अंदर microtubules they are there and that is why D has to be the correct answer. And बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बिल्कुल सही D आंसर दिया है. So absolutely right. Then coming to the next question in front of us, and question is, which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane? Single membrane से कौन enclosed है? That you have to tell. 2016 का क्वेश्चन. अब ये बातें हमने उसी टाइम डिस्कस की थी जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे कि किस ऑर्गेनेल में डबल मेम्ब्रेन है, किसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन मेम्ब्रेन लेस है. ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है याद रखने की. क्वेश्चंस उसमें से काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनकेस्ड बाय single membrane? And the options are lysosomes, nuclei, mitochondria या फिर chloroplast. So as you all know, quite obvious answer है इसका. And let us see who all have given the right answer. Yes, but I am waiting. 5 सेकेंड और हैं आप सभी के पास इसको आंसर करने के लिए. 5 seconds more you all have to answer this question. And we all know, yes, absolutely, very good. बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है. एंड वी ऑल नो कि किस ऑर्गेनेल के पास बिल्कुल कोई भी there is only a single membrane. So we all know कि lysosomes they have only a single membrane. बाकी आपके न्यूक्लियाई में we have seen कि डबल membrane होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 membranes हैं. क्लोरोप्लास्ट also has got 2 membranes. Only lysosome it has got a single membrane. That's why A is right here. Then coming to next question, and the question in front of your screen is over here. Water soluble pigments found in plant cell vacuoles are, और ये क्वेश्चन पूछा है 2016 से. Okay, what have they asked you is that water soluble pigments found in plant cell vacuoles are, options हैं carotenoids, anthocyanins, xanthophylls या फिर क्लोरोफिल्स. ओके, प्लांट सेल वैक्यूल की बात चल रही है यहाँ पर. एंड 2016 का क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन राइट हियर. चलिए देखते हैं क्या आंसर इसके लिए रिसीव हो रहे हैं. ओके, वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दे रहे हैं. आज तो बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं वो, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है. इसमें आपके एग्जाम में भी 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं बिकॉज द चैप्टर इट्स क्वाइट ईजी और वेटेज इसका काफ़ी अच्छा है. तो इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट हम नहीं कर सकते हैं. सो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स जो कि प्लांट सेल वैक्यूल में मिलते हैं, व्हाट आर दोज? सो यू हैव टू से दैट दे आर एंथोसाइनिन्स. एंथोसाइनिन्स होते हैं वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स जो कि हमारे वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सो दैट्स व्हाई बी हैज टू बी करेक्ट आंसर हियर. देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. एंड व्हाट यू हैव टू डू हियर बच्चों, यू हैव टू सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर. यहाँ से आपको मिसमैच बताना है फिर से. और आपके सामने क्या क्या लिखा है? गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एनिमल सेल, protists, eukaryotes, methanogens, prokaryotes. And what you have to select? Mismatched pair. मिसमैच पेयर. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है. मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बच्चा इसका आंसर यहाँ पर गलत देने वाला है. यू ऑल नो विच वन इज मिसमैच. सबको पता होना चाहिए. ये बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड से आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स रिसीव हो रहे हैं. एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस मिसमैच पेयर? कौन है इसमें से? ऑलराइट, यस, 5 more seconds बेटा. I'm not rushing. I'm giving you 5 more seconds for this question. Select the mismatched pair. Yes. Now let's talk about the mismatched pair. So gas vacuole, green bacteria के अंदर. Yes, that's correct. Then large central vacuoles
इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर क्या लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वी हैव स्टडीड दिस कि प्लांट सेल जो होता है उसके अंदर एक काफ़ी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, विच इज़ नॉट द केस विथ एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं काफ़ी, सो दैट्स वाई ये हमारा मिसमैच पेयर है। एंड देन प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स यस, methanogens, prokaryotes definitely yes. So that's why B, we will say that it is the mismatch pair here. Then coming to the next question, a cell organelle which contains hydrolytic enzymes is, and the options are lysosome, microsome, ribosome या फिर mesosome। अभी हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया था ना बेटा ये, so I don't think that we need to spare much time to this question। cell organelle जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है, we all know it, yes। कौन सा है? वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, इट हैज टू बी योर लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देती है, सो दैट्स व्हाई वी वुड से ए इज करेक्ट ओवर हियर। फिर नेक्स्ट, मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अब फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन हियर। एंड 2015 का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ देर पहले भी हमने सॉल्व किया था, इफ़ यू रिमेंबर। बिल्कुल ऐसा ही मैच द कॉलम था, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत ऑप्शंस में चेंजेस आ गए हैं। सो यू कैन सी हियर हाउ द क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड इन अ डिफरेंट मैनर। सो थैलेकॉइड्स, इसके सामने लिखा है डिस्क शेप्ड गोल्गी apparatus, डिस्क शेप्ड सैक्स इन गोल्गी apparatus, क्रिस्टे कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ DNA, सिस्टर्ने flat membranous sacs in stroma, chromatin infoldings in mitochondria। Now you have to match this columns and select the option from here। And as you can see, बिल्कुल ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया है, उसमें ऑप्शंस भी ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे कर दिया एंड द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन 2015। चलिए, सो लेट अस मैच इट, जल्दी से हम मैच कर लेते हैं। लेट अस सी क्या आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं, व्हाट ऑल आंसर्स वी आर रिसीविंग। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। सो लेट्स मैच इट। थाइलेकॉइड्स, वी ऑल नो दैट थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलेकॉइड्स होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा, प्लास्टिड्स के अंदर। ओके, देन क्रिस्टे, क्रिस्टे इनफोल्डिंग्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। सो ए का 3 कहाँ पर दिया है? देखो 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए का 3, देन बी का 4 यहाँ पर 2 ऑप्शंस में है, बी एंड डी में। सो मतलब अब 50-50% हमारे पास आ गया है। देन सिस्टर्ने, सिस्टर्ने वी ऑल नो दैट दीज आर द डिस्क शेप्ड सैक्स इन द गोल्गी apparatus। सो सी का हो गया है 1 यहाँ पर, एंड एज वी कैन सी डी ऑप्शन में सी इज गिवन टू बी 1 हियर। एंड देन क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। Okay, chromatin, it is given in front of chromatin that it is condensed structure, although chromatin जो होता है अपना it is uncondensed DNA, uncondensed DNA होता है but here it is written condensed structure of DNA। So D has to be the correct answer here because chromatin को हम select करेंगे as condensed structure of DNA। So in this manner this question has been solved। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, which is in front of you right here। cellular organelles with membranes are, with membranes पूछा है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका 2015 का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियाई। Then you can see the second statement, lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria, nuclei, ribosomes, mitochondria, क्रोमोसोम, राइबोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो अभी कुछ देर पहले हम यही बात कर रहे थे कि किसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, किस ऑर्गेनेल के पास डबल मेम्ब्रेन है, विच ऑर्गेनेल इज मेम्ब्रेन लेस। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। एंड एज वी कैन सी हियर, अब आपसे पूछा है यू हैव टू सिलेक्ट द सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स and let's see what all answers we are receiving here। all right, so as we can see here, okay, very good, बहुत ही बढ़िया response। and as we all can see that since they have asked you about the organelles with membrane, so with membrane कौन कौन सी organelle है इसमें से, we all must understand this thing कि the organelle which is present with membrane
इज देयर? फर्स्टली अगर ए ऑप्शन को देखें तो इसमें ER दिया है. राइबोसोम इज देयर. वी ऑल नो कि राइबोसोम इज विदाउट मेम्ब्रेन, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता, सो ये ऑप्शन तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते. देन लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया. कैन वी सिलेक्ट दिस ऑप्शन? यस डेफिनेटली. बहुत सारे बच्चों ने बी ही आंसर किया है यहाँ पर. सो वी नो दैट लाइसोसोम, गोल्गी और माइटोकॉन्ड्रिया सभी के पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. देन न्यूक्लियाई, यहाँ भी राइबोसोम दिया है, इसे भी हम नहीं सिलेक्ट करेंगे. क्रोमोसोम and then ribosome is given here, so this is also wrong here, so that's why the answer here has to be B. and जितने भी बच्चों ने B आंसर दिया है absolutely correct. Then let's come to next question in front of your screen right here, and the question is which of the following are not membrane bound? अब देखो फिर से पूछ लिया, 2015 का क्वेश्चन है. not membrane bound अभी तो डिस्कस किया, राइबोसोम्स are not membrane bound, so that is why B has to be the right statement here. Then let's talk about the next question. अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, and the question is which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? prokaryotic cell के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है? and the question is from 2015. ऑप्शंस है मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर राइबोसोम्स. prokaryotic cell के अंदर you all must know the characteristic feature of prokaryotic cell. what is that? what is the characteristic feature of a prokaryotic cell? Absolutely, very good. मोनेरा में भी हमने ये पढ़ा है, and in this chapter also we have studied. They are asking you about not the feature of prokaryotic cell, and definitely yes, बिल्कुल सही बच्चों, बहुत ही सही उत्तर आप दे रहे हैं यहाँ पर. और as I can see, almost everyone is giving the right answer here. So let's have a look at the answer. So mostly जो आंसर यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं वो है C आंसर. So let's talk about C option here. न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक है क्या? बिल्कुल भी नहीं. इट इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, सो दैट इज व्हाई न्यूक्लियर एनवेलप का तो सवाल ही नहीं होता. सो C हैज टू बी आवर आंसर हियर. बाकी मीजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, दीज ऑल आर नॉट करेक्ट. देन अगला क्वेश्चन, बिकॉज दीज ऑल आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. देन अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स मेंटेन दैट हेल्प्स सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू आर. कुछ टाइम पहले हमने डिस्कशन की थी, पिलाई फिम्ब्री के बारे में हम पढ़ रहे थे. यस बच्चों, वेरी गुड, एब्सोल्युटली, पहले से ही आंसर्स आ चुके हैं. Yes, okay, I will give you some more time, but this is something that we had discussed right here some time before. कुछ देर पहले ही हमने ये बात डिस्कस की थी. Yes or no? Yes, definitely. सो चलिए, अब यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है टिश्यू के ऊपर किसी भी बैक्टीरिया को. सो वी नो दैट द स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज फिम्ब्रे. फिम्ब्रे नाम के स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, जो कि उन्हें किसी भी टिश्यू पे अटैच होने में हेल्प कर देते हैं. सो दैट्स व्हाई डी इज गोइंग टू बी आवर आंसर हियर. देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन right here. Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? prokaryotes के अंदर इनमें से कौन सी inclusion body नहीं मिलती है, ये आपसे पूछा गया है. और ऑप्शंस आपके सामने, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, पॉलीसोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल या फिर साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल. एंड दे आर आस्किंग यू अबाउट प्रोकैरियोट्स, नॉट एन इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट्स. दिस इज द क्वेश्चन. 2015 का ही क्वेश्चन है ये. And let's have a look who all are giving right answer for this question already. Till now we have not received any answer. अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन के लिए. All right, चलिए. So some more time for the same. All right, चलिए. So the answers that I am receiving here, बहुत ही कम बच्चे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को. क्या हो गया kids? You have to at least respond. Okay, all right, चलिए. So anyways, not an inclusion body आपसे पूछा गया है प्रोकैरियोट्स के अंदर. So ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल होता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल होता है. फॉस्फेट ग्रैन्यूल भी होता है एंड साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. बट ये जो पॉलीसोम लिखा है यहाँ पर,
पॉलीसोम, यू ऑल नो पॉलीसोम क्या होता है, यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी की बात चल रही है एंड यू ऑल नो व्हाट इज पॉलीसोम, राइट? सो दैट इज व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट बी हियर. पॉलीसोम हमने पढ़ा है दैट इस तरह से जब mRNA पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम. सो दैट्स व्हाई बी यहाँ पर गलत ऑप्शन है. सो बी वी हैव टू सिलेक्ट हियर. Then coming to next question, and the question is, which structures perform the function of mitochondria in bacteria? बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? एंड द ऑप्शंस आर न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स, सेल वॉल या फिर मीसोसोम. एंड you have to tell the correct answer. 2014 का क्वेश्चन है ये, and let's see what all answers we are receiving for this. Okay, all right, you all have got the question बच्चों. क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर. सो लेट्स सी किसको ये सारी बातें याद हैं. दिस इज समथिंग दैट वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड बिफोर. ऑल राइट, ओके, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल. All right. So what they have asked you can see here. Mitochondria. What is the function of mitochondria? First of all, you all know कि mitochondria का function क्या होता है. We already know this thing that mitochondria का काम होता है production of an ATP. That's why we call it as powerhouse of the cell. Yes or no? And now I can see that many students since last many questions they are not responding here. Yes, quickly before we proceed to this answer, firstly let me see that whether everyone is present here in the class or not. Quickly send me thumbs up. जल्दी से बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पर क्लास में बैठे हैं जल्दी से send me a thumbs up so that I can get to know that yes, you all are present here. Okay, yes, I want a thumbs up from all of you so that I can get to know that you all are present. jaldi se a quick response. And see, what you have to always remember is that when we are doing such questions here which are previous year questions या फिर अगर हम कोई भी दूसरे question bank से यहाँ पर question solve कर रहे हैं, so you have to be very attentive. Whatever we are discussing here, although आपको उसका आंसर आ चुका है, आप अपना आंसर देके आंसर सेंड करके बैठ चुके, but still listen to everything very carefully. You have to make sure that you are actually listening to each and every questions discussion here. आप discussion को भी सुनेंगे that अगर कोई भी particular answer गलत है तो वो क्यों गलत है, या फिर कोई सही है तो वो क्यों सही है, that also you have to understand. So focus is very very important. You have to be focused right here in the class itself. बीच बीच में mentally यहाँ वहाँ roam करने के लिए नहीं जाना है. When we are discussing questions, you have to make sure that you pay your 100% attention to here, because definitely these sessions are going to prove very very important for you. And as you can see, questions किस तरह से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से questions repeat होते हैं. So इस pattern को समझना बहुत important होता है जब आप किसी भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हो. So PYQs are something they are utmost important. So you can't afford to roam here and there mentally in such sessions. तो चलिए आ जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोडक्शन का काम करता है, राइट? बट हियर दे हैव आस्क्ड यू फॉर बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर विच पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? न्यूक्लियोइड का काम होता है क्या ये? नो. न्यूक्लियोइड तो उसका जेनेटिक मटेरियल है. राइबोसोम्स? नो. राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस. सेल वॉल, can that perform this function? Definitely not. Cell wall is there for protection. Then we come to mesosomes. You all must remember mesosomes के बारे में we have studied, right? And that happens to be the structure which we can say that they are present and they can perform the function of mitochondria in bacteria. So that's why we will select D over here. So the next question in front of us from the year 2014 is, the osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by mitochondria, vacuoles, plastids or ribosomes.
and you have to select the correct answer for this. Osmotic expansion की बात यहाँ पर चल रही है for a cell which is kept in water. Which particular structure is going to regulate it? And as I can see, the answers already I have received for this question. Very quick answers. Very good बच्चों. बिल्कुल. The answers that I am actually receiving here, they are definitely right. They are asking you about osmotic expansion. जब किसी cell को हम plant, if we keep any particular cell in water, तो उसका जो osmotic expansion होता है वो किस पे depend करता है? And this we have actually studied that it depends on the vacuole. Vacuole is that structure जो कि इस चीज़ को regulate करेगा. That's why B has to be the right answer over here. Then अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा. मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है. सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोजाइम एंड इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलेकॉइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स या फिर basal body of cilia and flagella. Okay, this you have to select from here and let's have a look what should be the correct answer. ऐसे matches हम पहले भी काफ़ी बार कर चुके हैं and let's see what all you are answering. क्या answers यहाँ पर receive हो रहे हैं. So as I can see here, different answers. देखो ऑप्शन डी तक आंसर पढ़े बिना कभी भी आंसर करने की गलती नहीं करनी है. This thing I keep repeating again and again. You don't have to make this mistake. भले ही आप कितने भी श्योर हो आंसर ए देखकर आपको लग रहा है बिल्कुल अरे ए ही सही है, बट स्टिल डी ऑप्शन भी पढ़ लो. कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं. यू हैव टू सेलेक्ट द मोर अप्रोप्रिएट वन. So that's why always read up to this option D. D को बिल्कुल neglect नहीं करना है. So now let's have a look what should be the correct answer. The answers that I am receiving here, they are actually mixed. अलग अलग आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं, जबकि ये हम लोग कुछ देर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने ऐसे मैचेस पहले भी किए. So let's see. First of all, if we talk about centriole, सेंट्रियोल्स की यहाँ पर बात चल रही है. सो सेंट्रियोल्स वी वुड से दैट बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. राइट, सो यू कैन सी हियर ए का 4 दो ऑप्शंस में दिया है, ए एंड डी दोनों में. देन क्लोरोफिल, वी ऑल नो दैट क्लोरोफिल के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है थाइलेकॉइड्स में. राइट, सो बी का 2 है यहाँ पर एंड यू कैन सी ए में ही बी का 2 दिया हुआ है. करेक्ट मैचिंग. एंड देन क्रिस्टे, वी ऑल नो, यहाँ पर किसी को भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको नहीं पता हो कि इनफोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्रिस्टे कहते हैं. सो दैट्स व्हाई सी का 1 हो गया. एंड देन राइबोजाइम्स वी वुड से हियर न्यूक्लिक एसिड से बनी है. सो दैट्स व्हाई डी का 3. एंड इन दिस मैनर ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. देन आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय. मोटाइल बैक्टीरिया किसकी वजह से मूव कर पाता है? फिम्ब्रे, सीलिया, पिलाई या फिर फ्लैजिला. सो दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड फिम्ब्रे और पिलाई काफ़ी बार हमने अभी डिस्कस किया है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट आंसर्स वी आर रिसीविंग फॉर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आंसर्स बिल्कुल डेफिनेटली बेशक बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर. वेरी गुड. Errorless answers you are sending for this question. They are asking you about motile bacteria किसकी हेल्प से मूव करता है. We all know फिम्ब्रे और पिलाई तो नहीं है. फिम्ब्रे होल्डिंग के लिए यूज होता है, पिलाई कॉन्जुगेशन के लिए यूज होता है, जबकि सीलिया इट्स नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एट ऑल. बैक्टीरिया के पास होता है द whip like structure which we call as flagella which helps it to move. So that's why we would say B is the right answer here. Then coming to the term glycocalyx is used for. Glycocalyx, what is that? Direct question है. Options आपके सामने. A layer present between cell wall and membrane of bacteria. Cell wall of bacteria. Bacterial cell glycoengineered to possess N-glycosylated proteins या फिर a layer surrounding the cell wall of bacteria. And that you have to tell here the term glycocalyx is used for. किस चीज़ के लिए glycocalyx term यहाँ पर use होती है? That you have to tell here. And the options, the statements are in front of you right here. चलिए. So let us see what all you are answering. Glycocalyx बच्चों. Glycocalyx, I hope you all do remember. This is something that we had actually discussed. Yes, definitely. So the answer that I am receiving here,
Mostly the answers are correct. Glycocalyx जो होता है that is a layer which surrounds the cell wall of bacteria. That is definitely true. और बाकी जो भी options हैं यहाँ पर काफ़ी abrupt है. So that's why we have to select D as our right answer. Then next question. The Golgi complex plays a major role in 2013 का क्वेश्चन है Golgi complex के बारे में and the statements that are given related to Golgi complex are as energy transferring organelle Golgi complex important role play करता है in post translational modification of proteins and glycosylation of lipids. That is the next option. In trapping the light and transforming it into chemical energy, या फिर in digesting proteins and carbohydrates. And they have asked you about its major role. अब language यहाँ पर ज़्यादा complex करने की कोशिश की है, but अगर आप उसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा that actually this question is quite the question which we have already discussed. अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में काफ़ी बार रिपीटेडली हमने डिस्कशन किया था और वही यहाँ पर भी है स्टेटमेंट में. आप ध्यान से पढ़ोगे सो यू विल फाइंड आउट दैट एज वेल. बट थोड़ा सा घुमा के वो ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्टली ना देते हुए दे हैव गिवन द सेम ऑप्शन इन अ ट्विस्टेड मैनर. ओके, सो नाउ लेट्स सी किसको ये बात यहाँ पर समझ में आ गई है, कौन वो बच्चे हैं जो कि बिल्कुल समझ गए इस बात को और करेक्ट आंसर दे आर गिविंग. सो लेट अस सी what they have asked you, and the question was asked in 2013. 2013 का question है ये. All right. So देखिए गोल्गी apparatus, ओके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में ये बात हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस की थी, तो एक बहुत ही बड़ी हिंट मैंने आपको यहाँ पर एक्चुअली दे दी है. एंड जस्ट लिटिल वाइल अगो हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ऑल राइट, अब एक एक ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स का कोई भी रोल नहीं है, इट इज़ नॉट एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल. इन ट्रैपिंग लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल गलत. केमिकल एनर्जी को लाइट को ट्रैप करने का बाद काम गोल्गी का होता है क्या? नो, क्लोरोप्लास्ट इज देयर. देन इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट एट ऑल. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम डाइजेशन नहीं होता है, डाइजेशन इज डन बाय लाइसोसोम्स. ये भी गलत हो गया. सो व्हाट इज द रिमेनिंग ऑप्शन? इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स. दैट मीन्स यहाँ पर घुमा के ये यही बात कर रहे हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो लैंग्वेज हल्की सी ट्विस्ट कर दी है लेकिन बात तो वही है. सो दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स. बाकी सारे आप रोल्स देखो बिल्कुल एब्रप्ट दिए हुए हैं. सो बी इज द राइट आंसर हियर. अब ऐसी लैंग्वेज देखकर घबराना नहीं है, यू जस्ट हैव टू थिंक एंड देन आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन फिगर करेक्टली मैचेस विथ इट्स फंक्शन. ऑलराइट, फिगर में देख लीजिए यहाँ पर 2013 का क्वेश्चन है. फिगर यू कैन सी विच ऑर्गेनेल इज गिवन हियर. एज यू कैन सी हियर, यस, विच ऑर्गेनेल इज गिवन. एब्सोल्युटली बिल्कुल ER है. एवरीवन नोज दैट इट इज ER. नाउ ऑप्शंस क्या क्या है देख लेते हैं. गोल्गी अपैरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, बिल्कुल नहीं, गोल्गी अपैरेटस है ही नहीं. यहाँ पर भी गोल्गी लिखा है, ये भी गलत है. देन B एंड C ऑप्शंस देख लेते हैं, दोनों में RER दिया हुआ है. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू कैन सी हियर, यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड देन एक के सामने लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस एंड दूसरे ऑप्शन में फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स लिखा हुआ है. एंड वी ऑल नो कि जो अपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? द फंक्शन ऑफ RER इज एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस. सो दैट इज व्हाई C हमारा आंसर नहीं है. B हैज टू बी आवर राइट आंसर. एंड एज आई कैन सी हियर, many kids, many of you have actually given correct answer here. बिल्कुल सही. चलिए, so now coming to next question.
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, लिपिड सिंथेसिस सिम्प्लास्ट, न्यूक्लियोसोम, आरईआर या फिर एसईआर। 2013 का क्वेश्चन है और ये बात भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि आरईआर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस और एसईआर का फंक्शन है synthesis of lipids or lipid synthesis. So that is why D has to be the right answer here. ज़्यादा टाइम स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है. We have already discussed this question lots of times. Then अगला question, which of the following types of plastid does not contain stored food material? 2013 का question है ये and पूछा गया है does not contain stored food material. किसके अंदर नहीं होता stored food material? और options हैं क्रोमोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या फिर अमाइलोप्लास्ट. एंड यू ऑल मस्ट रिमेंबर प्लास्टिड्स के अंदर ये बात हमने डिटेल में डिस्कस की है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, स्टोरेज के लिए विच प्लास्टिड्स आर रिस्पॉन्सिबल, हाउ डू वी क्लासिफाई प्लास्टिड्स इन 3 कैटेगरीज एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. प्लास्टिड्स के बारे में आपसे पूछा गया है एंड यस वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है. हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है. अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा आप लोग जो भी आंसर्स दे रहे हैं वो सही है या फिर गलत है. ऑल राइट, सो दे आर आस्किंग यू अबाउट द प्लास्टिड जो कि स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एंड एज बिल्कुल बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से बहुत ही जल्दी आंसर्स किए हैं दैट स्टोर्ड फूड मटीरियल किसके अंदर नहीं होता है? क्रोमोप्लास्ट. वी ऑल नो दैट क्रोमोप्लास्ट इज दैट प्लास्टिड विच हैज गॉट पिगमेंट इन इट. इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं और अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करता है ये, जैसे कि पर्पल, पिंक, ऑरेंज, रेड, ये सारे जो ब्राइट कलर्स होते हैं दे आर प्रोवाइडेड बाय क्रोमोप्लास्ट ओनली. बाकी हमारे इलायोप्लास्ट, जस्ट सेकेंड, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये सब हमारे स्टोरेज के लिए होते हैं प्लास्टिड्स. अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करके रखता है. देन एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, इलायोप्लास्ट फैट्स को स्टोर करते हैं. सो इन दिस मैनर ये सब स्टोरेज के लिए है, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के लिए. And chloroplast is responsible for photosynthesis. Then again 2013 का question है, select the alternative giving correct identification and function of the organelle A in the diagram. अब आपको अगर A यहाँ पर नहीं दिख रही है, let me draw it over here. इस तरह की एक organelle यहाँ पर draw की गई है. Okay, an organelle like this has been drawn there and you all must be able to recognize this organelle very clearly. ये organelle यहाँ पे बनी है, सबको पहचान में आ जाती है कौन सी organelle है ये. Which organelle this has to be? इस तरह का shape कौन सी particular organelle का होता है ये लीजिए, और accurately बना दिया है मैंने. So which organelle has got this kind of shape? What organelle it must be? And definitely बिल्कुल सभी को दिख रहा है यहाँ पर that this is mitochondria. So A के अंदर mitochondria दिया है. mitochondria का काम होता है ATP synthesis. So A is absolutely correct. So now coming to next question. Select the correct statement from the following organelle from the following regarding cell membrane. Cell membrane के बारे में आपको यहाँ पर correct statement select करना है और option statements आपके सामने है. 2012 का question. Sodium potassium ions move across cell membrane by passive transport. Proteins make up 60-70% of cell membrane. Lipids are arranged in bilayer with polar heads towards the inner part. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. And ये question है आपका 2012 का. आपको correct statement यहाँ पर select करना है. You have to select the right statement here. And if you remember the information about your cell membrane, you will be able to answer this particular question correctly. Okay, so let's see what all answers we are receiving for this question. क्या आंसर्स यहाँ पर आ रहे हैं? ओके, चलिए. सो आंसर्स दैट आई एम रिसीविंग हियर दे आर एक्चुअली मिक्स्ड. मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस क्वेश्चन के लिए तो विदाउट एनी एरर बिल्कुल सही आंसर्स आएंगे, बट अभी तक जो आंसर्स आ रहे हैं दे आर एक्चुअली मिक्स्ड आंसर्स. अलग अलग आंसर्स आई एम गेटिंग हियर. ऑल राइट,
चलिए, सो यहाँ पर बात चल रही है बेटा, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है इसमें दे आर सेइंग सोडियम पोटेशियम आयंस जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव होते हैं. दिस वी हैड स्टडीड. सोडियम पोटेशियम आयंस जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन एक्टिवली होता है. जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. सो ए हमारा गलत हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुड बी द केस. देन प्रोटीन्स मेकअप 60-70%. नो, प्रोटीन्स जो है वो 50-60% ही फॉर्म करते हैं, दैट वो एज पर आवर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ठीक है, सो ये भी गलत हो गया. लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टूवर्ड्स द इनर पार्ट. वी हैव स्टडीड कि जो बाइलेयर होती है उसमें बाहर, दैट मीन्स इनर पार्ट में एंड आउटर पार्ट में, हाउ दे आर अरेंज्ड. जो आउटर पार्ट है उसमें हाइड्रोफिलिक एंड होता है और जो इनर पार्ट है उसके अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट मीन्स इनर पार्ट में हाइड्रोफोबिक पार्ट इज देयर. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन was proposed by Singal and Nicholson. Yes, this is true, this is a fact. So D has to be the right answer here. So हमने यहाँ पर D select कर लिया. यहाँ पर confusion जिन बच्चों को हुआ, please understand that D was the right answer. Singal and Nicholson ने तो propose किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, डायरेक्ट स्टेटमेंट था ये तो. देन व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम. राइबोसोम के बारे में ट्रू बताना है आपको 2012 में से. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS. यहीं पर बात खत्म हो गई, ये स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होता है. देन दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, RNA एंड प्रोटीन से बनता है ये, या फिर दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स, या फिर दीज आर सेल्फ splicing introns of some RNAs. And now you have to tell the correct true statement about your ribosomes. And now let's see who all are giving the right answer over here for this particular question. Question is quite direct बच्चों. This is something that we have already discussed. ये बात हमने already की है that ribosomes, what are they? Yes, absolutely correct. So mostly answers that I have received here for this question are definitely right. That that ribosomes, they are actually composed of RNA and proteins. ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर. बाकी statements they are false over here. So B has to be our correct statement, true statement regarding ribosomes. Then next question. Which one of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? ई कोलाई और क्लेमाइडोमोनास के बीच में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिफर नहीं करता है? राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन. एंड यू कैन सी दैट ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, क्लेमाइडोमोनास एक यूकैरियोट है. अब इन दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर डिफर नहीं करता है, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस यू कैन सी राइबोसोम, क्रोमोसोमल ऑर्गेनेल्स, सेल वॉल, सॉरी क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन. एंड एज यू कैन सी, एज यू ऑल नो दैट, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रिसीव हुआ है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर or it is almost the same in your prokaryotes as well as eukaryotes, and that's why D is what we have to select here as our answer. So D यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है. Then coming to next question. अगला क्वेश्चन है, which one of the following cellular parts is correctly described? 2012 का क्वेश्चन है ये. What you have to tell? करेक्टली डिस्क्राइब्ड सेल्यूलर पार्ट क्या है इसमें से, और स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं. जैसे सबसे पहले थाइलेकॉइड्स, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, और उसके सामने दे हैव गिवन यू देयर डिस्क्रिप्शंस, सो दैट यू हैव टू रीड एंड आंसर. थाइलेकॉइड्स फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं विच फॉर्म ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सेंट्रियोल्स आर द साइट ऑफ एक्टिव RNA synthesis. Ribosomes, those on chloroplast are larger than 80S while those on cytoplasm are smaller than 70S. Then lysosomes optimally active at pH of about 8.5.
And as we can see that out of all these descriptions, which one is correct, आपको correctly match बताना है. And this is something जो कि हमने कुछ देर पहले भी discussion कर लिया था इन सारी बातों पे. Correctly described option you have to select from here. And we all know that thylakoids, they are the flattened membranous sacs जो कि ग्राना फॉर्म करता है क्लोरोप्लास्ट में. ये बिल्कुल सही बात है. बाकी के सारे statements they are absolutely wrong. So A is our correct statement over here. Thylakoids इस तरह के membranous structure होते हैं. जब ये stacks form कर लेते हैं तो we can say that they have formed the grana. So that's why A is the right answer here. Then coming to अगला question. Which one of the following structures is an organelle within an organelle? Okay, which one of the following structures is an organelle within an organelle? And the options are ribosome, peroxisome, ER या फिर mesosome. And let's have a look at the correct answer here. So 2012 का question है ये, and let us see who all are giving the right answer over here. What they are asking you, organelle within organelle. You have to understand the statement. बेटा statement को समझो. Question काफी आसान है. Question is very easy. Question is actually very easy. अगर आपने उसको समझ लिया, question समझना बहुत important है. And that's why I say whenever we are discussing PYQs तो बहुत ज़्यादा important है आपके लिए कि आप questions पे भी ध्यान दो. What is the language of questions? Whether you are able to understand the language of the question or not, because this is actually very very important. कई बार बच्चा question ही नहीं समझ पाता है, so वो options को कैसे select करेगा. They are asking you about organelle within organelle. कुछ बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है. वेरी गुड दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर. जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो ये समझ लीजिए. दे आर आस्किंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर विच कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल. और आप सभी को पता है कि राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल, राइट? एंड दिस इज दैट ऑर्गेनेल जो कि दूसरी ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिलता है. दिस इज एन ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल. जैसे कि राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऑल्सो इट इज फाउंड विद इन देम. सो दैट्स वाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सो यहाँ पर हम ए को सिलेक्ट करेंगे. देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने 47th क्वेश्चन 2011 से. पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल takes place in, and the options are chloroplast, mitochondria, chromoplast या फिर ribosome. And you have to select the right answer. अब आपसे यहाँ पर पेप्टाइड सिंथेसिस के बारे में पूछा है. पढ़ के घबराना नहीं है कि what is this peptide, this we don't know. You have to think and answer. They are asking you about peptide synthesis. And already बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है. Very good. This is actually a very good response that I am getting here. If they are asking you about peptide synthesis, तो किस चीज़ की बात चल रही है? जल्दी से मुझे बता दो यहाँ पर what they are talking about here. Yes. Absolutely correct, Chiranjeevi. They are asking you about protein synthesis only, right? So protein synthesis किसका function होता है? We have already studied that protein synthesis काम होता है अपने ribosomes का. So that is why we would say D is right here. Those who have given the correct answer, बिल्कुल शाबाश. And now coming to next question. Important site for formation of glycoproteins and glycolipids. इतनी बार repeat हो गया, बिल्कुल हम Golgi apparatus को mark करके आगे बढ़ जाएंगे, right? Then next question. Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? Endomembrane system का part कौन नहीं है? Golgi, peroxisome, vacuole या फिर lysosome. Endomembrane system you all must remember we have studied. क्या क्या parts होते हैं endomembrane system के अंदर? They have asked you which is not a part of endomembrane system. Yes. Alright. So as we can all see that endomembrane system के अंदर जो हम नहीं include करते हैं that is peroxisome. B is not included in endomembrane system. ER, Golgi, vacuole and lysosomes. These are the parts of endomembrane system. So that's why we would say B is the right answer here. B is not considered as a part of endomembrane system. Then again आपके सामने एक diagram है, diagram based question 2011 का. The figure shows the structure of a mitochondrion
With its four parts labeled as A, B, C and D, select the part correctly matched with its function. आपको correct function के साथ matching करनी है यहाँ पर. D, outer membrane gives rise to inner membrane by splitting. B, inner membrane forms enfoldings called as cristae. C, crista possess single cellular DNA molecule and ribosomes. या फिर A, matrix major site of respiratory chain enzymes. पहले तो A B C D आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या मार्क किया हुआ है. See in this diagram what they have labeled here, let me highlight over here for you. देखिए first of all D जो है यहाँ पर D को लेबल किया हुआ है. D definitely this is D outer membrane की जगह पर लेबल किया हुआ है. D is actually the outer membrane that they have labeled here. Then after that जो आपका B है, D क्या दिया हुआ है? outer membrane. Then B is definitely inner membrane. जो B है वो आपका inner membrane है. Then A happens to be matrix and then there is C. फिर उसके बाद आपका C is given over here. That is showing the infolding. So now you have to tell the correct answer. C is showing the infolding. ये जो ऐसी infoldings होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये C है. D outer membrane है, B inner membrane है, A is the matrix and C is the infoldings. And now you have to select that किसका function यहाँ पर correctly मैच किया गया है. सो आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को इट गिव्स राइज, या फिर इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है जिसे हम क्रिस्टे कहते हैं, या फिर क्रिस्टे इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम होते हैं क्या, या फिर मैट्रिक्स मेजर साइट होता है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स के लिए. दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस. ओके चलिए, सो अब आपको यहाँ पर आंसर सेंड करने हैं एंड लेट अस सी what all answers we are receiving here. All right. देखिए डायग्राम्स जितने भी एनसीईआरटी में है बच्चों, डायग्राम्स टेबल्स दे आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी डायग्राम्स है उसकी लेबलिंग आपको बिल्कुल ध्यान से देखनी है. एक भी ऐसा डायग्राम नहीं होना चाहिए जिसकी लेबलिंग या फिर जिसके बारे में आपको नहीं पता हो. एनसीईआरटी के डायग्राम्स टेबल्स all of them are very very important. okay so चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की. what they have given you in the option, सबसे पहले लिखा है outer membrane जो कि inner membrane को it gives rise by splitting. then B is inner membrane जो कि infoldings form करते हैं जिसे हम cristae कहते हैं. okay then C is the cristae which possesses single cellular DNA molecule and ribosomes as well. क्रिस्टे के ऊपर होता है क्या. then matrix मेजर साइट है रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स के लिए. these are the options actually in front of you and the answers that I have received here for this question they are definitely correct. बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आए हैं. B जो है हमारी इनर मेम्ब्रेन है एंड वो इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. बाकी आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन को स्प्लिट होकर इट डजंट गिव राइज टू इट. देन क्रिस्टे के ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम्स नहीं होते हैं. और मैट्रिक्स के अंदर मेजर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स आर नॉट सीन. सो दैट इज व्हाई वी वुड सिलेक्ट हियर B as our right answer. So B अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है. Then the plasma membrane consists mainly of, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है बता दो जल्दी से. 2010 का क्वेश्चन है. फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, या फिर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर. क्वेश्चन इज क्वाइट इजी. बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा है. यू हैव टू सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम हियर एंड एज आई कैन सी डेफिनेटली बिल्कुल बच्चों बिल्कुल करेक्ट आप लोग कह रहे हैं. यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं. सो दैट्स व्हाई स्टेटमेंट बी इज राइट हियर. प्रोटीन्स एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हैज टू बी द राइट स्टेटमेंट. सो बी हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एज अवर आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है
The main area of various types of activities of cell is, mostly activities जो सेल की होती है वो कहाँ होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस के अंदर. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर. 2010 का ही क्वेश्चन है ये भी, एंड लेट्स सी हु ऑल आर गिविंग द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अच्छा, ओके, सो इस क्वेश्चन के लिए तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे, बट यहाँ पर दो आंसर्स, अलग अलग आंसर्स आ गए एक्चुअली. Two different types of answers I am receiving here, and as you can see they are asking about the major area जहाँ पर mostly activities होती हैं cell की. You have to remember that the area where almost all the activities of cell happens, it is cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर सारी जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल की, दे हैपन इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ. कुछ बच्चों ने न्यूक्लियस कहा है यहाँ पर. न्यूक्लियस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन. उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड जरूर होते हैं, मतलब डीएनए आरएनए होते हैं, बट बाकी जो भी सेल्युलर एक्टिविटीज होती है मोस्टली साइटोप्लाज्म में होती है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सिलेक्ट साइटोप्लाज्म हियर. बच्चों समझ में आई बात? सो हियर 2010 का क्वेश्चन था हमारे सामने. एक और क्वेश्चन है फ्रॉम द ईयर 2010, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए. अब ये भी बात आप सभी को अब तक तो याद हो गई होगी कि अपना खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास है. सो हम यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी सारे ऑप्शंस they are just abrupt options. Then एक और क्वेश्चन है 2010 का, which one of the following structures between two adjacent cells is an effective transport pathway. ऑप्शंस दिए हुए हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्विनोन्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर प्लाज्मा लेमा. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट यू कैन सी हियर. दो एडजेसेंट सेल्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे, ट्रांसपोर्ट पाथवे कौन फॉर्म करता है. एंड दिस पर्टिकुलर टर्म वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम. हमने बहुत बार ये टर्म को एम्फेसाइज कर करके पढ़ा था. एंड एज आई कैन सी हियर I am receiving the right answer for this. बिल्कुल आप करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर. They are asking you about the transportation pathway, no? So who forms that? Very good, absolutely. We all know that कि ये जो adjacent cells के बीच में effective transport pathway होती है, कौन form करता है? It is actually formed by plasmodesmata. दो adjacent cells के बीच में there is presence of plasmodesmata. इस तरह से ट्रांसपोर्ट पाथवेज फॉर्म हो जाती है एंड देन द मटेरियल कैन गेट ट्रांसपोर्टेड. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्लाज्मोडेस्माटा. नाउ सो दिस इज वेयर we can see another question. An elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm which helps in maintenance of cell shape is called. And the options are thylakoid, endoplasmic reticulum, plasma lemma या फिर cytoskeleton. Maintenance of cell shape, सेल का शेप कौन मेंटेन करने में हेल्प करता है वो यहाँ पर पूछा गया है. एंड लेट अस सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. आप लोग इसके लिए क्या कह रहे हैं? सो yes, very good, absolutely correct. As we all can see, they are asking you about the structure which can help in maintenance of shape. सेल शेप की बात यहाँ पर चल रही है. थाइलेकॉइड, ER, प्लाज्मा लेमा या फिर साइटोस्केलेटन. सो वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड. यस, डेफिनेटली. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं. Lots of kids are saying endoplasmic reticulum. Some are saying cytoskeleton. So we have to understand that if they are simply asking you about कि एक नेटवर्क होता है filamentous proteinaceous structure का जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और सेल शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो दैट हैज टू बी योर साइटोस्केलेटन एंड नॉट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. साइटोस्केलेटन हैज टू बी द केस. और इसी वजह से उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं बिकॉज साइटो वर्ड इज रिलेटेड टू सेल एंड स्केलेटन वर्ड इज द थिंग विच प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क. सो दैट इज वाई साइटोस्केलेटन वर्ड वी आर यूजिंग हियर एंड दैट इज वाई डी हैज टू बी आवर आंसर हियर. सो डी अपना आंसर हो गया यहाँ पर. एंड दिस इज हाउ the questions from 2010 they were asked. एक और question है 2010 का and you can see here identify components labeled A, B, C, D in the diagram below from the list 1 to 8 given along with components. Alright, so here you can see right here C is labeled. यहाँ पर C को label किया हुआ है. C is labeled over here. ये C है. Then here there is A,
this is D and this is B. I hope that is visible to you. Diagram visible है आपको, ये C है, here there is C, here there is A, right here there is D, और फिर ये आपका B है. And what you have to do, you have to select the correct components from here. Components दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, cristae of mitochondria, inner membrane of mitochondria, cytoplasm, smooth ER, rough endoplasmic reticulum, mitochondrial matrix, cell vacuole, nucleus. और यहाँ पर आपको मैचिंग करनी, you have to match it. You have to match the labeling. मतलब कौन सी लेबलिंग क्या रिप्रेजेंट करे, C क्या है, A क्या है, B क्या है और D क्या है, that you have to label here. Okay? चलिए, सो शुड वी डिस्कस दिस. देखिए, हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं हो इमेज, बट लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो A है, व्हाट इज A लेबल्ड हियर, ये A लेबल किया हुआ है. देखिए A जो है यहाँ पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं ER पर, इतना तो क्लियरली विजिबल है. सो A इज एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन यहाँ पर देखो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, B इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो लेट अस सी यहाँ पर ऑप्शन में किसके अंदर लेबलिंग की हुई है. सो A के सामने इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज गिवन ऑन 5th नंबर. एंड डी ऑप्शन में भी 5th नंबर पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सो A या D में से कुछ हो सकता है. देन B इज गिवन टू बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 4th नंबर पे है. एंड ऑप्शन A के अंदर ही B के सामने 4 लिखा हुआ है, सो A हैज टू बी द राइट आंसर. बाकी C जो है अपना, व्हाट इज C गिवन हियर, C आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. यू ऑल नो कि ऐसे न्यूक्लियस के पास ही ER प्रेजेंट होता है, सो C इज न्यूक्लियस. और फिर अगर हम D की बात करेंगे, सो D इज लेबल्ड ओवर हियर, दैट हैपेंस टू बी द साइटोप्लाज्म. सो इन दिस मैनर दिस वाज योर क्वेश्चन and this was your answer. And here right from the year 2021 up to the year 2010 के PYQs from the chapter Cell the Unit of Life we have done and dusted. And now in the next session we will be starting with a new chapter. नए चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम उसके भी PYQs डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू. Yes, definitely you have to keep revising everything. You have to solve the PYQs after that, and then we will meet in the next class with a new topic that you have to attend. And if you are missing any of the topic, then please make sure that you go and watch the recordings. So मिलते हैं हम next class में. तब तक के लिए take care and bye.